Kia ora everyone, and welcome to Weekender at 5, where we bring you the biggest news headlines from New Zealand and India. My name is Preeti Garude, and I'll be your host for this evening. Let's look at the main headlines of the day. 90% of the eligible population of New Zealand is now fully vaccinated. The milestone means nearly 3.8 million people have rolled up their sleeves with 2 Pfizer doses. It comes hot on heels of the 3 DHPs in Auckland reaching the target. 7 of the country's 20 DHPs have now reached 90% double vaccination, and a handful of others are on track to reach the target in the next few days. 94% of the eligible population nationwide have had their first dose. County's Manukau District Health Board hit the vaccination target for 90% yesterday. Auckland DHB is sitting at 95% and Waitemata DHB is at 92%. Around 3,000 people marched from Civic Square to Parliament in Wellington to demand an end to the COVID-19 vaccination mandate and traffic light restrictions. The protest, organized by Brian Tamaki's Freedom and Rights Coalition, took place the day after Parliament rose for the year. It's reported that many have travelled from the North Island, including from Auckland, where the borders reopened yesterday. Abdul Aziz, who chased away the terrorist who attacked Linwood Islamic Center and Al-Noor Mosque, has been given the country's highest bravery award. Aziz, who was among the 10 people recognized for their courage in relation to the 15th of March terror attack, in which 51 people have died. Naeem Rashid, who died in the attack, has been posthumously awarded the New Zealand Cross for his bravery in challenging the gunmen at the Al-Noor Mosque. Since the establishment of the New Zealand Bravery Awards in 1999, only 2 other awards at the level of the New Zealand Cross have been made. 4 awards of the New Zealand Bravery Decoration and 4 awards of the New Zealand Bravery Medals were also given out today to those involved in helping people in the terror attack and catching the gunmen. Now moving to the interview segment of the show. The world is currently going gagas over NFTs. So what are these NFTs and what does it mean to possess one? Award-winning founder of an international cybersecurity firm led from the Waikato is launching a suite of cryptocurrency characters to persuade women to join STEM careers. Ankita Dhakar, who has designed the NFT characters called Cyber Cosmos Warriors to represent her ethos of strength, fairness, and equal opportunities for women. As a part of her ethos to inspire 100,000 women worldwide to join STEM careers by the end of 2022, we spoke to her about the world of NFTs, the 10,000 characters that she's created on cybercosmos.world, and why it's important to have more women working in tech. Let's find out more. Ankita, thank you so much for coming on to Indian Weekender at 5 with me today. Thank you so much for inviting me, Preeti. अंकिता, जैसे हमारी बात हुई थी इसके पहले, आज का जो टॉपिक है वो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि it's a relatively new topic. So as I mentioned in my introduction, आज हम NFTs के बारे में बात करने वाले हैं, और आपने जो NFT के इंडस्ट्री में आपने अभी जो आपका पैर yes, you have just entered the NFT sphere, which is a very trending conversation that has been happening globally as well, और New Zealand में भी काफी उसकी चर्चा हो रही है. So I thought, who better to invite to have a talk about this. So हम directly इसमें जाए, like I'll directly just ask you a question. So tell me in very simple terms कि like मैं arts की student हूँ, I am a literature background, so I have very zero knowledge about technology as such. So think of someone like me, and then just have if you could explain कि what are NFTs and what is happening in the NFT world right now. So NFTs basically is a non-fungible token. So if हम ज़्यादा technical नहीं जाते हैं इसके अंदर, और मैं layman term में जैसे आपने बोला कि मैं बताऊं, तो जैसे कि आपका DNA है, right? It is your DNA and it can't be replaced by somebody else. Your fingerprints, these are unique to you. I can't have your DNA and I can't have your fingerprints. That is who basically वो आपको unique बनाता है. That is exactly what is NFTs. तो ये ब्लॉकचेन पे होते हैं. अगर आपने कोई NFT क्रिएट किया तो आप उसके ओनर हो, और वो ओनरशिप आपसे कोई ले नहीं सकता है. जैसे कि अभी हमने कोई फोटो खींची, आप फोटो खींच के उसका कॉपी ले सकते हो, आप NFT का भी कॉपी ले सकते हो, बट आप उसका ओनरशिप राइट किसी से छीन नहीं सकते, बिकॉज इट्स ऑन द ब्लॉकचेन, इट्स रिकॉर्डेड, दैट इज ऑल डन एंड डस्टेड. नाउ उसको चेंज नहीं किया जा सकता है. ओके. एंड सो फिर
ये NFTs अभी जो मेरे रिसर्च में मैंने जो इंफॉर्मेशन फाइंड की है, सो NFTs लोग यूजुअली अभी जो चल रहा है, देयर मोर अबाउट आर्ट, जो आर्ट कलेक्शंस होते हैं उनके NFTs बने हैं, या तो फिर लोगों के ट्वीट, लाइक जैक डॉर्सी जो ट्विटर के फाउंडर है, उन्होंने तो उनका फर्स्ट पहला जो ट्वीट है उसके he started to promote that, and that has fetched like a couple of $1 million. So what are people doing with these NFTs? So what is the idea behind that? That you are, is the idea behind it is that you are the sole and unique owner of something, of that one thing? That is the idea, isn't it? It is that, and also अगर आपने मार्क जकरबर्ग का वीडियो देखा होगा मेटावर्स वाला, तो उसमें वो दिखा रहा है कि हाउ इन कमिंग ईयर्स हम लोग सब वर्चुअल रियलिटी में ही बात करेंगे, हमें कॉन्सर्ट को फिजिकली अटेंड करने की जरूरत नहीं है, हम वर्चुअली भी वैसे ही फील करेंगे जैसा कि हम फिजिकल इवेंट में करते हैं। तो बेसिकली मेटावर्स के अंदर आपको एक एवेटार चाहिए, राइट? अगर आपको एंटर करना है यू नीड सम सॉर्ट ऑफ एन एवेटार। तो ये NFT, अगर हम जो आप आर्ट की बात कर रहे हो, कलेक्टिबल्स की बात कर रहे हो, वो वही है, बट NFT कैन बी प्रीटी मच एनीथिंग। जैसे आपने कहा जैक डॉर्सी का ट्वीट कैन बी एन NFT, आप अपने कोई म्यूजिक को NFT बना सकते हो। बेसिकली इट इज अबाउट ओनरशिप, एंड जिसको आप बेसिकली बोलो कि मैं ही इसका ओनर हूँ, और अब वो चेंज नहीं हो सकता है। Okay, and then how can people be involved with this? Like how can someone like me be involved, and how can I buy an NFT? तो मेरी कंपनी स्टार्ट करने से पहले मैं फोटोग्राफी करती थी, राइट? तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आप आज चाहें कि मुझे तो अपनी आर्ट अब NFT बनानी है, सो देयर आर कपल ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक फाउंडेशन ऐप, ओपनसी। आप अपनी जो खुद की गैलरी क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन बैकएंड में जो टेक्निकल स्टफ है वो प्लेटफॉर्म खुद आपके लिए करता है। तो बेसिकली आपको एक फी देनी पड़ती है। आप अपनी जो आपने क्रिएट किया है, वेदर इट्स म्यूजिक, वेदर इट्स एन इमेज, कल को आप कहीं घूमने गए, आपने किसी की चीज की फोटो खरीदी, आप वहां पे उसे एज एन NFT लिस्ट कर सकते हैं, एंड इफ समबडी लाइक्स इट, तो वो क्योंकि यूनिक है, मे बी कोई US में बैठा है और उसको लगा वाह ये न्यूजीलैंड का वाटरफॉल मुझे बहुत अच्छा लगा, I want to buy it, right? So it can be on auction. आप उसको एक ऑक्शन की तरह सेल कर सकते हैं, या फिर आप एक उसका फिक्स प्राइस लगा सकते हैं कि I want to sell this waterfall for say $500 or $700, और कोई भी वहां से आके उसको खरीद सकता है। बेसिकली मेरे लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इससे पहले क्योंकि मैंने खुद फोटोग्राफी की है, जो आर्टिस्ट होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और वो नहीं मिलता है जो कि उनको मिलना चाहिए। विद दिस टेक्नोलॉजी they can actually earn money, और इसका एक अच्छी चीज ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिस्ट हैं, आपने एक NFT बनाया और उसको मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर दिया, अगर आपसे कोई खरीद लेगा दैट इज फाइन, आपने बेच दिया, बट जब वो किसी और को बेचेगा, वो जो सेकेंडरी सेल का जो मार्जिन है वो भी आपको हमेशा मिलता रहेगा। सो दैट इज एन अमेजिंग थिंग। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। सो दैट इज वन वे आप NFT में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बाकी इसको आप एज एन इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपने बोर्ड एप NFT का नाम सुना होगा, तो दैट इज $1 million क्लब NFT। तो आप किसी NFT में खरीद सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल हमारी साइबर कॉस्मोस वर्ल्ड की NFT आज आपने खरीदी से $500, एंड इफ यू वर टू लिस्ट इट ऑन OpenSea, और आप उसको $2000 में बेचना चाहें और कोई आपसे खरीद लेता है, तो वो फिर आपने $2000 में बेच दिया। तो दैट इज इट्स एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग जो भी नॉर्मली लोग करते हैं, इसको आप वैसे भी ले सकते हैं। तो आई थिंक ये दो, हाँ ये दो चीजें जिससे मुझे लगता है कि लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर। Perfect. That makes perfect sense to me, and it has actually clarified everything जो मैंने research में पढ़ा था। आपने exactly वही points mention किए, and one of the major things was the royalties that go to the artists, and which is why we have so many artists who are actually creating a lot of NFT content as such, if we could look at it. So now you mentioned Cyber Cosmos, so let's move into that, and I am very excited to understand कि ये Cyber Cosmos की जो idea है आपकी, एक तो पहले कहाँ से generate हुई, and what is this Cyber Cosmos that you've done? ओके, सो ये आइडिया एक्चुअली मुझे आया था क्योंकि न्यूजीलैंड के कुछ लोकल NFT प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दे वर डूइंग क्वाइट वेल इन द NFT स्पेस। तो मैंने कुछ रिसर्च किया, एंड मैंने उनको पढ़ा, तो मुझे समझ में आया ओके ये लोग जो है ये एक आर्ट जो है लिस्ट कर रहे हैं और लोग जो है इसको खरीद रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हम
जो पैसा आए, अगर हम इसको सेल करते हैं, जो पैसा आए वो हम कम्युनिटी कॉज के लिए इसको यूज करें। तो मैंने सोचा कि एज अ फीमेल इन टेक, मुझे लगा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो टेक में आना चाहती हैं, बट किसी ना किसी रीजन से वो आ नहीं पा रही हैं, वेदर इट्स रिसोर्सेज, वेदर इट्स ट्रेनिंग, वेदर उनको कभी अवेयरनेस ही नहीं है कि ये भी हो सकता है एज अ करियर पाथवे। तो पहली बात तो वो सारी चीजें देख के मुझे लगा कि वाओ, दिस कैन बी समथिंग जिससे हम पैसा रेज करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो कुछ लोकल प्रोजेक्ट्स थे, वहां से मुझे आइडिया आया, बट बेसिकली साइबर कॉस्मोस इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग वुमेन। कैसे हम जो ये रिप्रेजेंटेशन है, अंडर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का इस सेक्टर में, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ये ही एक पूरा आइडिया है। हम लोगों ने कहा है कि अगर हम लोग 50% सेल करते हैं तो हम एक लोकल चैरिटी को 25,000 न्यूजीलैंड डॉलर डोनेट भी करेंगे, और जो पैसा आएगा उससे हम वही अवेयरनेस, मेंटोरशिप्स और जो भी हम सोशल एंटरप्राइजेस के साथ मिलके कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो हम करेंगे। Okay. And so Cyber Cosmos में, so there are these 10,000 characters that you have created, right? So can you talk a little bit more about what is the shape of these characters? Because इसके पहले आपने avatars के बारे में बात कही थी, जो so is that something along those lines? हाँ, ये एवेटार्स ही हैं बेसिकली। तो जैसे कि आपने आज ये एवेटार खरीद लिया, एंड व्हेन द मेटावर्स इज एक्चुअली देयर, यू कैन यूज दैट बिकॉज इट्स योर्स नाउ। अगर आपने हमसे साइबर कॉस्मोस से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर खरीदा, दैट इज अ यूनिक कैरेक्टर। तो एट द मोमेंट हमारे जो है 151 यूनिक ट्रेट्स हैं कैरेक्टर के, और हर जो 10,000 कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ उसमें यूनिकनेस है, वो सब अलग अलग हैं। जैसे कि अगर मैं और मेरे 3 भाई बहन हैं, हम तीनों एक दूसरे से अलग हैं, भले हम एक ही पेरेंट्स से हैं बट हम तीनों अलग हैं। सेम ही है ये 10,000 क्रिएटर जो क्रिएट किया हमने, हमारा क्रिएटर सेम है बट वो सबके सब अलग हैं। तो अगर आप कल चाहें उस एनएफटी को नाम देना चाहें, आप दे सकते हैं। मे बी आप कहें कि उसकी स्टोरी अलग है, आप उसकी स्टोरी बता सकते हैं। सो इट कैन बी योर ओन यूनिक एवेटार जो आपकी यूज करेंगे और मेटावर्स में उसको लेकर एंटर करेंगे। तो पीपल इसकी 2 चीजें हैं बेसिकली। मैं इसलिए भी करना चाहती थी, जैसे कि हम फेसबुक पे वो फ्रेम देखते हैं ना कि आई एम फुली वैक्सीनेटेड, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपने हमसे ये एवेटार लिया तो आप उसको अपना प्रोफाइल पिक्चर बनाएं, ताकि लोग जाने कि इसके पीछे एक मिशन है, व्हिच इज टू गेट 100,000 वुमेन इनटू स्टेम, और ये कॉज को सपोर्ट करें बाय चूजिंग एंड बाइंग इनटू दीज एनएफटीज। तो एक ये तरीका भी मुझे लगा कि अच्छा रहेगा अवेयरनेस के लिए। Yeah, so there is the while there are multiple angles within it. While there is an investment angle, you can own it and then that can go further. There is one angle where the artist gets recognition as well. But then there is the third angle, which is you're supporting a cause. हम बेसिकली एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जिसमें कि लोग हमें सपोर्ट करें जो हम करना चाहते हैं, और हम इसको लिमिट नहीं करना चाहते हैं सिर्फ न्यूजीलैंड से। बिकॉज आई वाज एक्चुअली हैविंग अ कन्वर्सेशन विद ए सोशल एंटरप्राइज बेस्ड इन मेडागास्कर, जिसके फाउंडर जो है न्यूजीलैंड बेस्ड हैं। ही एक्चुअली मूव्ड फ्रॉम न्यूजीलैंड to Madagascar 6 years ago to do the good work, and there are so many people who are trying to do these things, but वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ के पास पैसा नहीं है, कुछ के पास रिसोर्सेज नहीं है। तो हमें लगा यार अगर हम पैसा जनरेट करें इससे, और हम ऐसे सोशल एंटरप्राइजेस को डोनेट करें जो कि ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम शायद साथ में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 10,000 फीमेल कैरेक्टर्स मैंने इसीलिए चूज करे क्योंकि मैं चाहती थी कि जो लड़कियां हैं वो मेटावर्स को लीड करें, डोमिनेट करें। क्योंकि अगर आप पुराने टेक सेक्टर्स देखेंगे, हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी बहुत कम है। मैं नहीं चाहती कि मेटावर्स में भी सेम ही चीज हो कि भाई लड़के आगे निकल जाएं और हम पीछे रह जाएं, और उसके बाद फिर हम वापस से वही बोलें कि भाई अब हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इसको आज ही जान लें, आज ही इसी पे काम करना स्टार्ट कर दें, तो देर नहीं होगी। That's perfect. That's a perfect segue into my next question, which was key. You've mentioned about the shortage of women in tech, working in tech, working in STEM careers. So if you can give me a glimpse of just a small glimpse, ki aapko tech mein, like cybersecurity mein especially, what motivated you to come into cybersecurity, and what can you also shed a light on what is this shortage of women in tech doing to the industry?
Okay, so starting from how I started, so basically I was working in a company in Auckland that used to destroy businesses, private and government confidential information. And one day I just got curious, what happens if this data gets into the wrong hands of people? So that was the curiosity that I had in mind. And when I researched about it, मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को तो अभी पता ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी होता क्या है. तो वहां से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया एंड आई फाउंडेड द कंपनी. फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो और बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट किया कि ये स्किल शॉर्टेज जो है साइबर सिक्योरिटी में, इसको हम कैसे कलेक्टिवली कम कर सकते हैं. तो दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ सिक्योरिटी लिट, दैट इज द कंपनी दैट आई रन. दूसरी चीज जो आपने कही कि भाई कि क्या हम अगर लड़कियां नहीं होंगी किसी चीज में, तो मैं एक इसका अच्छा खासा एग्जांपल है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज अभी रन कर रहे हैं, अगर हम इंडिया में बात करें, बायजूस हो गया या हम गूगल फेसबुक की बात करें, दे आर ऑल जो है बड़े जो लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है, उनमें लड़के बैठे हुए हैं, राइट. और मुझे ऐसा लगता है, एंड इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि लड़कों का जो सक्सेस का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है कि रेवेन्यू कैसे हो, नंबर बेस्ड होता है वो. बट मुझे लगता है कि लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है. वो प्रेफरेंस जो है पैसों को नहीं देती हैं, वो देती है ह्यूमन वैल्यूज को. तो अगर मुझे लगता है कि अगर आप एक लड़की को कहेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए और एक लड़के को कहेंगे, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है. आप उसमें अपनी ह्यूमन वैल्यूज डालेंगे, आप एम्पैथी डालेंगे, आप केयर डालेंगे, आप उसके अंदर मतलब प्यार से बनाएंगे उसको कि हाँ यार, जब दूसरा बंदा इंटरैक्ट करे इस प्रोडक्ट के साथ तो वो रिफ्लेक्ट करता है. बट अगर आप लड़कों को बोलोगे तो उनका जो, एंड इट्स वेरी ह्यूमन बिहेवियर. तो मुझे लगता है कि अगर हम लड़कियों को सीनियर लीडरशिप में लाएंगे या फिर हम उन्हें जो है डेवलपमेंट फेजेस में लाएंगे, तो वो प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में दिखेगा. क्योंकि हम लोग नंबर्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं. हम लोग सोचते हैं कि यार एक्सपीरियंस कैसे अच्छा हो, या इस आदमी को इससे फायदा क्या हो रहा है, नहीं पैसों के अलावा. हमारी कंट्री को रन जो करते हैं जसिंडा आर्डन, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ. वो एम्पैथी को इतना ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं, एंड आई थिंक शी इज डूइंग रियली वेल. तो मुझे सेम ही चीज लगती है कि अगर आप फीमेल लीडरशिप को प्रेफरेंस देंगे तो वो सारी चीजें जो हैं आपको दिखेंगी. कि पैसा मुझे लगता है सेकेंडरी है. फर्स्ट चीज हमें लगता है लोग भूलते जा रहे हैं कि ह्यूमन वैल्यूज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में. So basically working towards, especially towards a technology that's developing, it's ideal and from the start itself it has that inclusive development within it. I think that's probably the line that, and I think it is not just about women, it is about diversity in general. कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अलग अलग बैकग्राउंड्स और कल्चर से लोगों को डालें, क्योंकि वो जहां से आते हैं मे बी वो कुछ अच्छा लेकर आए, राइट. अगर आप एक ही तरीके के लोगों के साथ काम करेंगे तो आपको प्रोडक्ट भी वही सेम टाइप का मिलेगा. उसमें आप बहुत ज्यादा कुछ वैसा कुछ अलग सा नहीं देख पाएंगे. तो मुझे लगता है कि डाइवर्सिटी फॉर मी इज नॉट जस्ट हैविंग मोर वुमेन, बट इट्स टू हैव एवरीबॉडी on board from different cultures and backgrounds. Yeah, perfect. Thank you so much for that, Ankita. I think this was a really good conversation, and I learned a lot out of it. So now before we close off, and I know that about Cyber Cosmos, where can people, if they want to be a part of your cause, where can people go and get access NFTs from Cyber Cosmos? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. बेसिकली हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 31st March 2022, विच इज नेक्स्ट ईयर. बट हमने क्या किया है, हम लोगों ने एक फेसबुक पे ग्रुप बनाया है ताकि लोग NFT, क्योंकि अभी बहुत नया है NFT ना, और बहुत लोगों को पता भी नहीं है. ऑल्दो मेटावर्स का एड कितने टाइम पहले आया था, बट अभी भी लोगों को पता नहीं है व्हाट इज मेटावर्स. तो हमने वो ग्रुप बनाया ताकि लोग आए, क्वेश्चंस पूछें और जाने, ताकि हम भी क्योंकि हम जब शेयर करते हैं ना, हमें भी 4 चीजें सीखने को मिलती है. तो अगर हम अपना नॉलेज दूसरे के साथ शेयर करें और वो हमें बताएं, तो ये लगता है कि हाँ चलो ठीक है, हमने आज इनको बताया, इनको भी ब्लॉकचेन के बारे में, इथेरियम क्या है, कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब पता चलेगा. तो हमने ग्रुप बनाया है, वो आप फेसबुक पे आई कैन शेयर द लिंक विद यू. इट्स कॉल्ड लेट्स टॉक NFTs साइबर कॉस्मोस वर्ल्ड. बाकी हमारा वेबसाइट है www.cybercosmos.world, जहाँ पे आप हमारी स्टोरी देख सकते हैं और टीम के बारे में भी जान सकते हैं.
Perfect. Thank you for that. Thank you for that, Ankita, and thank you so much for joining me on Indian Weekend at 5. Oh, thank you so much for having me here. I really love the conversation. Thank you so much.